السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ میں ہوں مہروق شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کریں گے۔ چیئرمین NDMA نے حالیہ بارشوں سے 670 اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں سرچنگ کے عمل میں مصروف عمل ہے۔ سیلاب میں بہہ جانے والوں کی بھی بڑی تعداد ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ چیئرمین NDMA نے حالیہ بارشوں سے 670 اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں سرچنگ کے عمل میں مصروف عمل ہیں اور سیلاب میں جو لوگ بہہ گئے ہیں ان کی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا تقریباً 670 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ ابھی تک جو لوگ کل اور پرسوں کی رپورٹ میں مسنگ ڈکلیئر ہوئے تھے اس میں کچھ کی ریکوریز ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ان میں بھی زیادہ تر ڈیڈ باڈیز جو آج ہم نے ریکور کی ہیں KPK سے ان دا لاسٹ 24 آورز، مستقل طور پر مسنگ پرسنز کا اور جو لوگ لاپتہ ہو گئے فلیش فلڈ میں بہہ گئے ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ تمام عمل جاری رہے گا۔ ہماری آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز وہ وہاں پر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے جو ریسکیو 1122 کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس میں مسلسل اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی سرچ کے دائرے کو اپنی ریسکیو کے دائرے کو بڑھایا جائے۔ جبکہ پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بھرپور انداز سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس ٹاک کی ہے جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اب تک 6903 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، جبکہ 9 میڈیکل کیمپس کے ذریعے 6000 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق خیبر پختونخوا میں فوج کے 8 یونٹس امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بنیر میں تعینات 2 بٹالینز بھی شامل ہیں۔ سیلاب کے باعث صوبے بھر میں 90 سڑکیں متاثر ہو چکی ہیں جن کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ DG ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر متاثرہ علاقوں میں اضافی نفری بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ سے یہ سانحہ اور یہ جو ان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا شمالی علاقہ جات میں خیبر پختونخوا میں، تو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، اس میں ابھی تک 6903 جو ہمارے بچے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے آرمی کی جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے۔ ابھی تک 6304 سے زیادہ جو ہمارے ساتھی ہیں بہن بھائی ہیں بچے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا چکا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور FC کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں خیبر پختونخوا میں، اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان، 3 میڈیکل کی یونٹس ان ایڈیشن ٹو دی ان سچو ریسورسز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اس سے ڈپلائڈ ہیں۔ ایویشن آرمی ایویشن جو سی ہے اس کو بھی ڈیڈیکیٹڈلی لگایا گیا ہے، اور ویدر پرمیٹنگ جو سا ہے جتنی سارٹیز کی جا سکتی ہیں اسپیشلی فار ٹیکنگ آؤٹ دی میڈیکل کیجولٹی ایویکویشن، لوگوں تک دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز ادویات اور کھانا پہنچانا وہ کیے جا رہی ہیں۔ یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہیں جو کہ ادر دین دی ان سچو ریسورسز جو اویلیبل ہیں، دے آر رائٹ ناؤ ڈپلائڈ 24 آورز فار دی فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشنز۔ اور مشکل وقت میں قوم متحد ہو کر مشکلات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پہلے روز سے صوبوں اور اداروں کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم بنایا گیا تھا۔ متحد ہو کر ہی سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی چیئرمین NDMA کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا اربن فلڈنگ میں انسانی جانوں کو ضیاع املاک کو نقصان پہنچا، اب تک 25,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم بنایا گیا تھا ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ یہاں سے ڈے 1 سے نہ صرف صوبوں تک اور تمام متعلقہ اداروں تک معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک ایک اوورآل نیشنل ایفرٹ کے ذریعے جس میں وفاقی حکومت، پاک فوج، NDMA، متعلقہ جو مقامی حکومتیں ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لگ بھگ 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں متحد ہو کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے۔ حالیہ مانسون بارشوں کے اسپیل کے نتیجے میں جو ایک اربن فلڈنگ دیکھنے میں آئی ہے جس پر قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا، پراپرٹی کا بھی بہت لاس ہوا، اس نیشنل ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل رسپانس ہے۔
आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 390 तक जा पहुंची है। PDMA के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 357 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हलाक होने वालों में 41 ख्वातीन और 29 बच्चे शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 169 अफराद जख्मी हुए हैं। शदीद बारिशें हैं, सैलाबी रैलों ने सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे 602 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 182 मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं। मकामी इंतजामिया को हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अब भी जारी है। आवाम से अपील की जाती है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामात का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। दावों के बरक्स रिवायात बरकरार रहीं, अहम शाहराहें डूब गईं, मोटरसाइकिल सवार फंस गए, मुतादिद गाड़ियां धंस गईं, स्कूल जाने वाले बच्चे ट्रैफिक जैम में रुल गए और ऐसे में ट्रैफिक संभालने वाले सड़कों से गुम हो गए। दास्तान कराची देखिए इस रिपोर्ट में। कायदाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद हो या बहादुराबाद, सब के सब इंतज़ामी गफलत के सबब बर्बाद। सरचानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन हो या कोरंगी टाउन, तमाम इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल डाउन। सदर, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल हो या गुलशन मेमार, हर जगह शहरियों की जिंदगी रही दुश्वार। जी हाँ, बात हो रही है कराची में चंद घंटों की बारिश की। अभी तो बादल खुलकर बरसे नहीं थे कि शहरी इंतजामिया के इक़दामात का पोल खुल गया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चे रुल गए, कहीं स्कूल वैन गड्ढों में गिर गईं तो कहीं ट्रैफिक में फंस गईं। सबसे ज्यादा मुश्किल मोटरसाइकिल सवारों को हुई। खस्ता हाल सड़कों में छुपे बड़े बड़े गड्ढे मौत के कुएं बन गए। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार पैदल बाइक घसीटते नजर आए और गाड़ियों वाले गड्ढों में धंसते दिखाई दिए। पैदल चलने वालों का तो ना ही पूछिए। ऐसी तमाम हंगामी सूरत हाल में ट्रैफिक संभालने वाले सड़कों से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। लाखों रुपए टैक्स देता हूं, बदले में मुझे क्या मिलता है? कराची के शहरी इंतजामिया के सामने सख्त सवालात रख रहे हैं, ताहाल कोई जवाब देने की जुर्रत नहीं कर रहा। बोल न्यूज़ के माइक पर नौजवान ने क्या पूछा, आपको दिखाते हैं। 10 लाख सालाना टैक्स देता हूँ, बदले में क्या मिलता है? लाखों रुपए की गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकता, मरने पर 5 लाख का इनाम, जिंदा रहने पर मौत क्यों मिलती है? कराची के शहरी ने इंतजामिया को बड़ा चैलेंज दे दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर खुर्रम गुलजार के सवाल पर लाजवाब कर दिया। शहर में रेन इमरजेंसी लगी हुई तो है। ये देखो ना, सारे गरीब खड़े में रुल रहे हैं। ये बेचारा काम पे जाने के लिए रुल रहा है। मैं भी अपनी मिलियंस की गाड़ी, तो पानी निकलेगा, हम जाएंगे। नया इंकशाफ किया, मौत पर इनाम हासिल करो। अगर मजीद बारिश शहर में हो जाती है तो क्या सूरत? ये मरेंगे ना, ये जो खड़े में, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएंगे तस्वीरें खिंचवा के चले जाएंगे कि इनके लिए 5 लाख रुपए का इनाम है। ये 5 साल तक रुलते रहेंगे वो इनाम लेने के लिए। कराची में चंद घंटे की बारिश से अंडरपास स्टॉप हो गए। 8 बजे से लेकर गोलीमार, लाटबेला तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मेरे रश में गुजर चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ से रेलवे सोसाइटी से घुमा के लाया तो यहाँ पे भी 1 घंटा गुजर चुके। हर तरफ पानी और जाम है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब मसरूफ है, सब ये खाली आते रहते भाई हमें वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बाकी कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेहनत कश ने सवाल पूछा, काम पर कैसे जाएं? सुबह से आवाम परेशान है, सुबह काम के लिए निकले, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। पानी तो इतना है, गाड़ी अब खुआर हो गए, मशीन भी कोई नहीं है, काम भी कुछ नहीं हो रहा। ये पानी आप देख रहे हैं, ट्रक तक से फंस गए, गड्ढे हो गए, रोडें बना दी है, पानी का कोई सिला ही नहीं है। गटर लाइन को सारे बंद पड़े हुए। तमाम सूरत हाल पर शहरी कराची को नंबर 1 शहरी करार देकर चलता बना। शहर में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर की बड़ी और आम शाहराहें ज़ेरे आब आ गई हैं। मेयर कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज करके अमले की तमाम छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी पर हाजिर रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से बात कर रहे हैं। खुर्रम, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? बिल्कुल 4 फीट तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जारी है। नाज़ाबाद है, लियाकताबाद है, नॉर्थ नाज़ाबाद है, इसी तरह नॉर्थ कराची है, सुरजानी टाउन है, बात करें कायदाबाद है, बिन कासिम टाउन, स्टील टाउन के इलाके हैं, मलीर है। उसके अलावा साउथ जोन की बात करें तो क्लफ्टन, डिफेंस और मलीर केमाड़ी के इलाके हैं। यहाँ इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। इस वक्त रोड जो है वो पानी में डूबा हुआ है, सड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दर्जनों गाड़ियां यहाँ हम देख रहे हैं कि बंद हो गई हैं। रिक्शे हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो, सब जो है वो इस वक्त तालाब का इस पानी में डूबी हुई हैं। साथ ही बात करें तो अंडरपासेस की, तो अंडरपासेस में भी हम देख रहे हैं कि पानी भर जाने की वजह से नाज़ाबाद है, चौरंगी है, लियाकताबाद अंडरपास, इसी तरह अमजद साबरी अंडरपास है, इनमें पानी भर जाने की वजह से
ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। जबकि जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, उन्हें बात करें नॉर्थ नाज़ाबाद शादमान टाउन की, तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि पानी की जो है वो हमें इस वक्त रोडों पर मौजूद है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रवानी मुतासर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रेन एमरजेंसी तो नाफिज की गई, लेकिन कहीं भी हमें ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अमला दिखाई नहीं दिया। जबकि बात करें मुर्तज़ाबाद की, उनकी जानिब से भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फायर ब्रिगेड का अमला हो, उसके अलावा जो भी KMC का अमला हो, तमाम की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उनको ड्यूटी पर मौजूद रहने की भी हिदायत की गई है। जबकि जो शहर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के दावे थे, वो हम देख रहे हैं कि कोई ट्रैफिक एहलकार हमें रोडों पर नज़र नहीं आ रहा है। जबकि KMC के अमले को भी हमने चंद एक मकामात पर हमने देखा कि ट्रैफिक के साथ साथ KMC का अमला जो है वो हमें दिखाई दिया है। जी खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में 2 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, बात करेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान से भी बात करेंगे। कुछ मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। कराची की सड़कें पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। लोग काफ़ी खुश भी हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अरसे के बाद इतना सुहाना हुआ है। कराची वाले एक लंबे अरसे से बारिशों की दुआएं मांग रहे थे और आज बिलाखिर वो दुआ ऐसी कबूल हुई है कि मुस्तकिल 2 घंटे गुजर चुके हैं, बारिश हो रही है। कराची के जो सड़कें हैं उनके मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। काशान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखें शहर में पिछले 2 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुतादिद इलाके तहाल ज़ेर आब आ गए हैं। मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर के इलाके से। यहाँ पर अभी भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकाम की जानिब से शहरियों को दरखास्त की गई है कि जितनी भी बरकी तनसीबात हैं उनसे दूर रहें और शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से भी जो है वो गुरेज करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में अभी भी कराची के मुतादिद सड़कें जो तहाल ज़ेर आब है, इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सिलसिला जो है शहर में सुबह से ही जारी था, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन हमने देखा कि 12 बजे के करीब शहर में बारिश का सिलसिला थम गया था। लेकिन अब शहर में दोबारा बारिश का एक नया सिस्टम दाखिल हुआ है और शहर के मुतादिद इलाके हैं जिसमें गुलशन हदीद है, मलीर है और इसके अलावा शहर के दिगर मज़ाफ़ाती इलाके जो है उनमें इस टाइम पे शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जो है ये आइंदा 24 घंटे में भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि शहर के मुतादिद इलाके हैं जिसमें सरजानी टाउन है और ज़िला गरबी के इलाके हैं, ज़िला किमाड़ी के इलाके हैं, उनमें शदीद बारिश रिकॉर्ड इस टाइम पे की जा रही है और सदर के इलाके में भी इस टाइम पे शदीद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। मज़ीद बारिश का सिलसिला जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। नशेबी इलाके डूब चुके हैं। आपका शुक्रिया काशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में जारी बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। मौसम के माहिर अंजुम नज़ीर ने बोल न्यूज़ को बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़्यादा है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आने वाले मजीद 2 रोज के दौरान कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान कराची में दरमियानी से कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है और ये सिलसिला सिंध भर में 23 तारीख तक जारी रहेगा और सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वक्फे से दरमियानी से मूसलाधार और चंद इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी बरकरार हैं। इस वक्त मगरबी उड़ीसा के ऊपर एक हवा का शदीद कम दबाव जिसको डिप्रेशन कहते हैं वो मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब शुमाल मगरिब की जानिब गामजन है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले 1 से 1.5 रोज के दौरान जो है वो इंडियन गुजरात तक पहुंच जाएगा और उसके इम्पैक्ट में जो है आने वाले 2 से 3 रोज जो है वो सिंध भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश के लिहाज। तो ये सिस्टम आने वाले 2 रोज तक तो कराची में अच्छी तरह असरअंदाज होगा और इसके साथ ये सिलसिला जो है मजीद सिंध के अक्सर इलाकों तक बढ़ता चला जाएगा और साथ साथ मशरकी बलूचिस्तान तक। खबरें और भी हैं आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। ऐसे में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बार बार सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ की है। सफाई सुथराई के काम पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान इस मंसूबे को सबूताज करने के दर पे हैं। सुथरा पंजाब सूबाई हुकूमत का ख्वाब। पंजाब की तारीख के इस सबसे बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा बिलाशुबा सुथरा पंजाब की तमाम टीम को जाता है। मैं इन तमाम वर्कर्स को सलाम करता हूं। गुज़िश्ता बड़ी ईद का अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाला। बजट में इस बेहतरीन मंसूबे के लिए 2024-25 में 120 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए, जिसे मजीद बढ़ाकर अगले माली साल में 150 अरब रुपए कर दिया गया है।
पंजाब को साफ सुथरा और मिसाली बनाने के लिए हुकूमत ने एक ग्रैंड मंसूबे का ऐलान किया। मुकम्मल छानबीन के बाद बाएतमाद और अच्छी शोहरत वाली कंपनियों को बोली में शामिल किया। इंतहाई शफाफियत से एक कंपनी को ठेका दिया जिसने मंसूबे की तकमील के लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी की और कामयाबी से सुथरा पंजाब मुहिम जारी थी। लेकिन माजी के चंद ब्यूरोक्रेट्स की तरह इस मर्तबा बानी PTI के साथ ही उस्मान बुज़दार के चहिते अफसर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम को पाकिस्तान की बेहतरी का मंसूबा हजम न हुआ और उन्होंने मंसूबे में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत पंजाब को जापान जैसा बेहतरीन बनाने का ख्वाब आंखों में सजाए बैठी है, जिसको सुथरा पंजाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर किया जाना है। लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम पाकिस्तान में जारी मंसूबे को भी सबूताज कर रहे हैं। मुबैना तौर पर कमिश्नर मुल्तान जाती मफाद की खातिर सुथरा पंजाब के ख्वाब को चकनाचूर करने पर तुले हैं। इतलात के मुताबिक उनके भाई मुल्तान रीजन में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। एक बार फिर बात शदीद बारिशों की करेंगे। हरीपुर में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी सड़कों के बाद दुकानों मार्केटों में भी पानी दाखिल हो गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, ज़िला हरीपुर की तीनों तहसीलों में इस वक्त जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में भी इस वक्त जो है बारिश जारी है। बारिश से मौसम एक तरफ तो खुशगवार हो चुका है, दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ आबादियों में मकानात मुतासर होने की इतलात भी हैं। राब्ता सड़कें हैं जो है हरीपुर में मुतासर हुई हैं। इनमें गाजी श्रीकोट बाईपास का जो है मुतासर हुआ है। इस तरह गाजी जहरीगंज बाईपास मुतासर हुआ है। नूरपुर इलाका, तरावल का इलाका नूरपुर, वहाँ भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है रोड मुतासर हुआ है। बेडकरी नाला मज़ई में जो है मुख्तलिफ मकामात पर रोड मुतासर हुआ है, राब्ता सड़कें मुनक़िद हुए हैं। यहाँ इन तमाम मकामात पर जो मुकामी आबादियाँ हैं अपनी मदद आपके तहत जो है इन रास्तों को खुलवाने की कोशिश कर रही हैं। आसिफ इकबाल आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।